Mr. Joshi, that there's a piece of news that is breaking. Again, I don't know what to call this, but anyhow, the Ministry of Home Affairs has now formed a probe panel into what exactly happened in Rajendra Nagar, where 3 students drowned to their death on Saturday evening. A panel has been formed to probe lapses and fix accountability. They have recommended policy changes. They are to submit their report in 30 days. Who are the people who will be on this panel? Amongst those, the Delhi Fire Police Chief, etc., as well. I don't know what this panel is expected to do or what they will actually come up with. But can I just get Mudit Gupta into the conversation as well? Mudit Gupta, you're a UPSC educator. To me, it is, I don't even know what to say. It's just shameless of the LG and the Aam Aadmi Party to leak letters to the media in the last 24 hours and say, देखो, हमने तो चिट्ठी LG को लिखा था, हमने तो चिट्ठी Aam Aadmi Party को लिखा था, but both of them didn't do their work. Is it, what do you make of this? There are 3 students who have died. These are students, UPSC aspirants, who are actually hoping to be part of the system that has drowned them. When you hear of all this, do you feel there's absolutely no hope? I think the crises that have happened are just tip of the iceberg, and I'll put things into perspective for you. Firstly, the number that 3 students have died is completely debatable because officials are, of course, maintaining that the number is 3, but the students on ground have claimed that they have seen much more. Even some students are claiming that they have seen 8 to 9 bodies being taken in police vans and ambulances. So this number 3 is in itself debatable because several RTIs have been filed with Ram Manohar Lohia Hospital and AIIMS, but we haven't got any response till date. So that number 3 in itself is debatable. Secondly, if you look at the entire ecosystem, whenever a students enter the market, now we don't just have to focus upon Rajendra Nagar. The same scenario happens in Mukherjee Nagar too. If you would remember, a few months back, there was a major fire tragedy at one of the big institutes in Mukherjee Nagar. So whenever a student enters either Rajendra Nagar or Mukherjee Nagar, he has to face a 3-front battle. First battle is with the NCD, second battle is with the coaching institutes, and third battle that no one is really talking about is the flat owners and the broking mafia. Now, whenever a student hunts for the flats, the next tragedy in the making is, if you look at the pictures where the students are living, the entire ceiling are full of seepages that can fall anytime. No one is talking about that. You're taking 20,000 rent. Broker are taking 21 days of rent as their brokerages, and no one is really talking about it. The walls are completely full of seepage that can fall anytime. Secondly, the coaching institutes, the basements that we are talking about, they are not just libraries. I have seen the system with my eyes myself. There are around 500 to 600 students that go into a basement, and it takes exact 30 minutes for all the students to get in, and it takes about 30 minutes exact by the clock to get out. Delhi lies in seismic zone 4. What happens if there are tremors? What happens if there is a short circuit? What happens if there is stampede? How students are going to come out? This entire tragedy involved 30 students, but there are classes of 500 to 600 students that are being conducted in the basement, and no one is really talking about that. And we are just naming one coaching institute, but there are hundreds of coaching institutes that are running 500 to 600 students classes in those basements, and there is just one single exit point. Also, I agree. In fact, the eyewitness accounts that are coming out are saying that even when these students were trying to come out, there were some students who actually simply fell because there was a rush. There was panic, there was a rush to get out, and a stampede didn't happen, but some kids did fall. So again, on the number 3, let me just say that right now, and I'm just saying this on behalf of, the editorial call that we've taken. The fact is that so far the police is saying that 3 students have died. And dekho, death ko chupana itna aasan nahi hota hai. If there were more students who had died in this drowning, we would have known by now. So let's just stick to that number and not spread this theory about the fact that there could be more students who have possibly died. But I get the point you're making. Ankit Singh Chauhan, I just want to get you in as well. You're a UPSC aspirant. You hope to become an IAS officer one day. IAS officers who sit and rule and head the MCD, the Delhi Jal Board, the PWD department, work in the LG's office, work in the Chief Minister's office. Do you really wish to be part of a system that has drowned some of your own colleagues, your fellow students?
See, first, I want to say this. जो बच्चे आए हैं, they don't seeking job. They want to the part of the system. They want to make the system very efficient. इसलिए वो आए हैं. जॉब तो बहुत सारे लोग हैं जो पीएससी हाँ तक प्रैक्टिस छोड़ बाद. आज जो मौत हुई है वो कोई एक्सीडेंट नहीं, वो मर्डर है, सिस्टम का मर्डर है. वो सब चीजें रोकी जा सकती है. 24 को कंप्लेन की गई है. मैंने आरटीआई फाइल की थी फेब में कि बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे चल रही है. उसका कोई रिप्लाई मिला ही नहीं था. उसमें दिया था इन्फॉर्मेशन है ही नहीं हमारे पास ऐसी कुछ. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट हर जगह जाए और सेफ्टी ऑडिट करे, पर जो हॉटस्पॉट्स हैं एजुकेशन के, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग, पटेल नगर, बेरसराय, मुखर्जी नगर, वहां पर तो आप एक सेफ्टी ऑडिट कर सकते हैं ना कि कौन सा बेसमेंट सेफ्टी है, कौन से में इमरजेंसी एग्जिट प्लान है, कहाँ पर क्या क्या हो सकता है. कुछ नहीं मैम. देखिए सब लोग अब तो आपने सुना होगा कि सक्सेस इज मेनी फादर एंड फेलियर इज ऑर्फन. अभी यहाँ कुछ अच्छा हो जाता है, सब अपना अपना लेने आते हैं कि हमने 70 साल में ये किया, हमने 10 साल में किया, हमने किया. अभी कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयारी नहीं है. ये किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी कि नाला क्लीन होना था. कोई नहीं बताएगा कि नाला कौन क्लीन करवाएगा. ये सब लेटर लिख रहे हैं, लेटर लिखते रहिए. लेटर ऐसे ही चलता था मैम, ऐसे ही चलता रहेगा. आज हम लोग जो बच्चे हैं, ये थोड़ी कि हम लोग कोई रेवोल्यूशन लेना चाहते हैं. बहुत बेसिक चीज है मैम ये कि अगर सबको पता है कि बारिश होने वाली है. इनकी जो मेयर थी और जिनके लोकल एमएलए थे, आई वाज देयर ऑन दैट नाइट. उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि 38 ईयर्स में सबसे ज्यादा बारिश हुई है. मैम कल ऐसा हो सकता है कि 140 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुआ है. तो आप क्या मरने के लिए छोड़ दीजिएगा. अभी मैम कुछ होगा तो हम लोग सबको कहते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टी चिल्लाती हैं फंडामेंटल राइट फंड. उसमें एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ. अब तो ऐसा लगने लगा है या कहीं की भी सरकार हो कि आप घर से निकल रहे हैं तो राइट टू लाइफ सरकार का नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आपको दिया है सरकार के ऊपर, वो आपको सरकार का नहीं है. आपकी जिम्मेदारी, आप जिंदा बच के घर आएगी. आप सरकार से ये उम्मीद ही मत रखिए. बच्चे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में बैठे थे, कोई गोइंग घूमने नहीं गया था कि कोई घूम के गया कि पहाड़ पे खाई में गिर गया या कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया. उससे ज्यादा में कोई क्या कर सकता है. जो मन लगा के पढ़ने के लिए बैठा है, उसमें से एक लड़की मेंस लिख रही थी. आपको पता है कि यूपीएससी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम. 6 लाख लोगों में 14,000 बच्चों को मेंस लिखने के लिए मिलता है. उसमें से भी 2 बच्चे हम लोग जो ऑलरेडी मेंस लिख रहे थे वो गवा चुके हैं. और अब आप ये जो है अब ये बताएंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने उसको चिट्ठी लिखी, हमने उसको चिट्ठी. हमें उससे मतलब नहीं है. वी हैव सम डिमांड्स और वेरी जेन्युइन डिमांड्स. हमें कुछ नहीं चाहिए. हम कोई रेवोल्यूशन नहीं लाना चाहते. हम किसी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है, ना एलजी के खिलाफ है. वी हैव सम डिमांड जिनको फुलफिल कर दे. फर्स्ट की एफआईआर की जो कॉपी है वो पब्लिक कर दिया जाए. इवन सेक्शन 74 वो कहते हैं कि पब्लिक डोमेन में आप उसको डाल सकते हैं. दूसरा कंपनसेशन. मैम पता है कि कंपनसेशन इज नॉट अ सोल्यूशन, बट स्टिल वी वांट अ कंपनसेशन फ्रॉम राव आईएएस कि 5 करोड़ पर हेड दे शुड अनाउंस अ कंपनसेशन. गवर्नमेंट जो करेगी. देन मैम देखिए एक बहुत बड़ी चीज है जो सब लोग भूल गए हैं. मुझे प्लीज अलाउ मी फॉर 2 मिनट्स कि अगर आप ये करेंगे, सारी लाइब्रेरीज को बंद कर देंगे, यू विल ओपन अ पेंडोरा बॉक्स. यहाँ पे जो रूम रेंट है ओवर एंड करोल बाग में 20 to 25 फॉर सिंगल रूम. 3 लोग शेयर करते हैं. 3 लोग के सब्जेक्ट अलग हैं, उनकी क्लास की टाइमिंग अलग है, उनके ऑप्शन सब्जेक्ट अलग है. क्या वो 3 लोग सिंक्रोनाइज करके पढ़ पाएंगे एक रूम में अगर लाइब्रेरीज बंद हो जाएंगी. सो वो हमारी आदत है, जब हम कुछ होता है तो हम एक साथ सब कुछ बंद करते हैं. सब कुछ बंद करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन. जब हम जो लाइब्रेरीज फ्लोर पर है, बहुत कम लाइब्रेरीज फ्लोर पर है, उनके रेट क्या होंगे आज ही बता रहा हूँ आपको. जो कल 3,000 रुपए थे महीने के, उनका रेट आज 6,000 हो गया है. एवरीवन कांट अफोर्ड 6,000 लाइब्रेरी और सब कोई सिंगल रूम अफोर्ड नहीं कर सकता है. अब क्या होगा कि अब सिंगल रूम के दाम बढ़ जाएंगे, ये बढ़ जाएगा. मैम वो पेंडोरा बॉक्स ओपन हो रहा है. और फिर अब क्या है कि गवर्नमेंट जो है पूरा सब कुछ शुरू कर देगी. आज जो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक बुलडोजर आया, उसने थोड़ा सा पार्किंग तोड़ा और एक स्टंट करके दिखा दिया कि अब हमने कार्रवाई कर दी. पार्किंग का एक आपने फुटपाथ तोड़ने से आपका क्या हो जाएगा. जो डिसिल्टेशन जब होना था, एक मुंबई जैसा शहर जो हर बार मानसून से पहले डिसिल्टेशन करता है, क्या मैम दिल्ली नहीं कर सकता था. इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. जो भी मैम इसमें कल्प्रिट हो, ये नहीं. और मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं कोई पॉलिटिकली इसमें नहीं जाना चाहता हूँ. सब पता नहीं किस पॉलिटिकल पार्टी में आता कि विल मेक दिल्ली या लंदन. मैम जिसको लंदन जाना है वो चला जाएगा. डोंट मेक इट लंदन, मेक इट दिल्ली. जस्ट सेफ कि हर कोई रह ले यहाँ पर. नहीं चाहिए. जिसको लंदन है वो अफोर्ड करेगा, वो लंदन चला जाएगा. दिल्ली को दिल्ली रहने दीजिए. नहीं चाहिए किसी को कि यहाँ पे ये मिले वो मिले. आदमी आप बेसिक नीड्स पे पूरी नहीं कर पा रहे हैं. कोई अपने रूम से लाइब्रेरी से पढ़ के रूम जा रहा है तो वो करंट से मर जा रहा है. यहाँ 3 लोग डूब के मर जा रहे हैं. कोई सोच ही नहीं सकता है मैम. उस दिन हम लोग रात में वहां से आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स आर क्राइंग, जबकि कोई एक दूसरे को जानता नहीं है. पर पता है कि आज वो थे, कल हम भी हो सकते हैं किसी लाइब्रेरी में पढ़ते हुए. और लाइब्रेरी को बैन करना इज नॉट अ ऑप्शन ना मैम. सारी लाइब्रेरी आप बैन कर देंगे, सबके पास सिंगल रूम नहीं है, वो कहाँ पढ़ेंगे. सो वी नीड अ मोर प्रॉपर प्लानिंग. मोर कि कैसे अगर जैसे मैम इतना बड़ा एरिया है, हॉटस्पॉट है, कोई मॉक ड्रिल नहीं हुई. एनडीआर